تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں آپ کو ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ہماری ضرورتوں کو ہمارے لیے مہیا اور مسخر فرمایا، اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائی، اور پھر مزید احسان یہ کیا کہ ہمیں ان کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائی۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا یہ محبوب دین اسلام ہم تک پہنچا، جن کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، اور جن کی اتباع و پیروی میں ہدایت ہے اور ان کی نافرمانی میں گمراہی، جن پر ایک بار درود بھیجنے والا اللہ کی 10 رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا یہ بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے، یہ ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے، جس کی آج 25ویں تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے صیام اور قیام کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العالمین کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے انہیں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے کھلے چھپے تمام قسم کے گناہوں سے مغفرت فرمائے، اور جو دن باقی رہ گئے اللہ رب العالمین انہیں غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں مزید محنت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، صیام و قیام کا اہتمام کرتے ہوئے، اور اس طرح سے صدقہ و خیرات کرتے ہوئے اپنی زبانوں کی، اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کی مدد فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جگہ عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے عید الفطر کے احکام و مسائل۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک رمضان المبارک کے خاتمے پر روزہ رکھنے کی خوشی میں اللہ رب العالمین نے 1 شوال کو عید الفطر منانے کا حکم دیا ہے، اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ، جو 10 ذوالحجہ کو سنت ابراہیم علیہ السلام قربانی کی ادائیگی پر منانے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بہت ساری، شریعت کی بہت ساری باتوں کی وہاں تکمیل ہوئی، تو وہیں اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض کیے، اور اس کے بعد سن 2 ہجری کے اندر مسلمانوں نے پہلی عید منائی۔ اور اس سے پہلے آپ سن چکے کہ غزوہ بدر بھی سن 2 ہجری کے اندر ہوا، یعنی غزوہ بدر کا سال، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم فتح تھی۔ اسلام اور کفر کی یہ سب سے پہلی جنگ تھی، سب سے پہلی لڑائی تھی جو اللہ رب العالمین نے ایک شاندار فتح کی شکل میں مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی، کہ مسلمانوں نے جوش و خروش کے ساتھ رمضان کے روزے مکمل کیے، اور یہ پہلی عید انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ پہلی عید منائی گئی۔ ایک ہم بھی آج عید منائیں گے چند روز کے بعد، لیکن آپ دیکھیں، حالات دیکھیں، ماحول دیکھیں، کیا عید منانے کی، کیا خوشی منانے کی، کیا عید منانے اور خوشی منانے کا کوئی مطلب دل سے کوئی خوشی منانے کا کوئی موسم نظر آتا ہے، کوئی منظر نظر آتا ہے؟ دل تو اندر سے دکھی ہے، رو رہا ہے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہت ساری جگہوں پر
नन्हे नन्हे बच्चे और हमारी माएँ और बहनें बेघर हैं, बेसहारा हैं, जख्मों से चूर हैं, हॉस्पिटलों में हैं और खाने पीने के इंतजामात से भी महरूम हैं। इसी तरह से कितने उनके अईज़ा व अक़ारिब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जा चुके हैं। ऐसे में एक मुसलमान कैसे खुश हो सकता है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक सारे मुसलमान दुनिया के चाहे किसी गोशे में रहते हो, सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह से, कि उनके जिस्म में कहीं भी एक कांटा भी चुभे, जिस्म का कोई भी हिस्सा बुखार से तप रहा हो, जिस्म का कोई भी हिस्सा दर्द में हो, तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। तो अगर एक मुसलमान कहीं तकलीफ में हो, दूसरा मुसलमान खुशी कैसे मना सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको वो खुशी अता फरमाए जिस तरह से सहाबे किराम को पहली ईद की खुशी नसीब हुई थी। आमीन तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन। तो नमाज ईद ये सन 2 हिजरी में ये फर्ज हुई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका हुक्म दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है और मुसलमानों को निकलने का हुक्म दिया है ईद की नमाज के लिए। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को जो नमाज नहीं पढ़ सकती हैं उनको भी ईदगाह में जाने का हुक्म दिया है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि ईद की नमाज पढ़ना ये फर्ज है। बहुत सारे लोग सुन्नत मुअक्कदा भी कहते हैं, बहुत सारे लोग फर्ज कहते हैं कि अगर जुमा के दिन ईद की नमाज आ जाए तो उसकी वजह से जुमा की फर्जियत साबित हो जाती है। एक मुसलमान ईद की नमाज अदा कर ले तो उसके बाद जुमा की नमाज पढ़ना उसके लिए जरूरी नहीं रह जाता है। उसके बदले में वो जोहर की नमाज पढ़ ले तो भी जुमा छोड़ने वाला नहीं कहलाएगा। तो कहते हैं कि ईद की नमाज इतनी अहम है कि उसकी वजह से जुमा की फर्जियत साबित हो जाती है। तो इससे जाहिर होता है कि ये भी एक फरीजा है, ये भी एक फर्ज है, क्योंकि फर्ज ही दूसरे फर्ज को साबित कर सकता है, सुन्नत किसी फर्ज को साबित नहीं कर सकती। और इसके लिए जिस तरह से रमजान का रोजा रखने के लिए आपको चांद का देखना या फिर किसी की गवाही आपके लिए जरूरी है, ऐसे ही ईद के चांद के लिए भी, ईद की नमाज की अदायगी के लिए भी शव्वाल का चांद का नजर आना आपके लिए जरूरी है, या इसी तरह से उसकी ये गवाही जरूरी है। वरना जैसे रमजान के रोजे के लिए अगर 29 को चांद नजर ना आए या गवाही ना मिले तो आपको 30 दिन पूरे करके फिर रमजान के रोजे शुरू करने पड़ते हैं, ऐसे ईद के लिए भी अल्लाह के रसूल का यही हुक्म है कि अगर चांद नजर आए, 29 को अगर चांद नजर आए तो फिर आप 1 शव्वाल को ईद मनाएंगे। अगर चांद नजर ना आए, बदली हो जाए, तो फिर 30 दिन पूरे करें और उसके बाद फिर ईद की नमाज पढ़ें। इस सिलसिले में बाज़ उलमा कहते हैं कि एक गवाही भी काफी है, बाज़ उलमा कहते हैं 2 गवाही काफी है। और इस सिलसिले में एक रवायत है 2 गवाही के ताल्लुक से कि अबू दाऊद के अंदर हजरत रबई बिन खिराश रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं रबई बिन खिराश रहमहुल्लाह ताबई है, एक सहाबी से रवायत करते हैं, कहते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रमजान के आखिरी दिन के बारे में इख्तलाफ हो गया कि चांद हुआ या नहीं हुआ, मदीना के अंदर इख्तलाफ हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को रोजा रखने का हुक्म दिया, लोगों ने रोजा रखा। इतने में दूसरे दिन 2 आराबी, 2 देहाती बाहर से मदीना के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने कहा कि कल शाम में चांद उन्होंने देखा है। उन्होंने गवाही दी कि कल शाम में चांद उन्होंने देखा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को हुक्म दिया कि रोजा तोड़ दे। फअमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासा अयुफ्तिरु, रोजा तोड़ दें। और उसके बाद फिर आप उस हदीस के अंदर इतना इजाफा है, इमाम खल्फ ने इजाफा किया है, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दूसरे दिन हम लोग ईद की नमाज पढ़ेंगे। यानी ईद की नमाज का वक्त उनकी निकल चुका था, इसलिए उस दिन आपने ईद की नमाज तो नहीं पढ़ी, लेकिन दूसरे दिन आपने पढ़ी, मगर उस दिन रोजा नहीं रखा, क्योंकि ईद के दिन रोजा रखना हराम है। अगर ईद का चांद नजर आ गया, गवाही मिल गई और शव्वाल की एक तारीख जाहिर हो गई, तो भले आप ईद की नमाज का वक्त निकल चुका है, इसलिए आप ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन पढ़ेंगे, मगर रोजा उस दिन नहीं रखेंगे, क्योंकि वो ईद का दिन है और ईद के दिन रोजा रखना हराम है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहला चांद देखते थे महीने का, चाहे किसी भी महीने का हो, रमजान का हो, शव्वाल का हो, किसी भी महीने का हो, जब भी पहला चांद नजर आए, आमतौर पर हमें दुआ की याद कब आती है,
जब रमजान का हम चांद देखते हैं या ईद का चांद देखते हैं तब हमें दुआ की याद आती है। नहीं, पूरे 12 महीने के हर महीने की पहली तारीख को पहला चांद वहां आप देखें तो चांद के अलग अलग दिनों के हिसाब से उसके नाम है। पहले तारीख के चांद को हिलाल कहा जाता है और 14वीं तारीख के चांद को बद्र कहा जाता है और तमाम दिनों के चांद को आमतौर पर कमर कहा जाता है। तो हिलाल जब देखें, पहली तारीख का जब चांद देखें तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे, वो दुआ हमें पढ़नी चाहिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान व सलामत वल इस्लाम व तौफीक लिमा तुहिब्बु रब्बना व तर्दा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। तमाम मुसलमान भाइयों को चाहिए कि हमें दुआ याद हो और हर महीने जो दुआ हमें हर महीने की पहली तारीख को पढ़नी है वो दुआ तो हमें याद ही होनी चाहिए, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि हम याद नहीं करते। छोटी सी दुआ है, हमें याद कर लेनी चाहिए। इसी तरह से जब ईद की नमाज के लिए आप तैयारियां करें, आपने चांद देख लिया है, ईद की नमाज के लिए आप एहतमाम कर रहे हैं, रोजा आपने तोड़ दिया है, तो रोजा तोड़ने के साथ, रमजान का महीना खत्म होने के साथ, चांद नजर आने के साथ एक चीज आपके ऊपर और फर्ज हो जाती है, वो है ज़कातुल फित्र। जैसे रमजान का महीना खत्म हुआ, चांद नजर आया और रोजे खत्म हो गए, यानी आपने इफ्तार कर लिया। अभी आप हर रोज का इफ्तार करते थे, ये मुकम्मल तौर पर पूरे महीने का आपने रोजे तोड़ने का की नियत कर ली और आपने इफ्तार कर लिया, तो अब यहाँ से सदकातुल फित्र, ज़कातुल फित्र आपके ऊपर फर्ज हो जाती है। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्री साअ मिन तमरिन औ साअ मिन शईरिन अलल अब्दि वल हुर्रि वज़्ज़करि वल उन्सा वस्सगीरि वल कबीरि मिनल मुस्लिमीन व अमरा बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल ख़ुरूजिन नास इला सलाह। बुखारी मुस्लिम। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र ये फर्ज करार दिया है, एक सा खजूर या एक सा जौ हर गुलाम पर, आजाद पर, मर्द पर, औरत पर, छोटे पर, बड़े पर, हर मुसलमान पर, यानी सारे मुसलमानों पर, चाहे वो बच्चा रमजान से उसी दिन ही पैदा हुआ हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, हर चाहे वो रोजा रखता हो, रोजा ना रखता हो, हर मुसलमान की तरफ से ज़कातुल फित्र निकालना ये वाजिब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फर्ज करार दिया है, चाहे वो गुलाम हो या आजाद हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि ईदगाह की तरफ निकलने से पहले, लोगों के लिए नमाज से पहले निकलने से पहले आपको उसे अदा करना है, यानी ये इसका वक्त है और ये इसका वाजिब वक्त है कि आप ईदगाह की नमाज से निकलने से पहले आप अदा करें। अगर हम उससे पहले निकालना चाहें तो कितने दिन पहले निकालने की रुख्सत है? अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक दूसरी रवायत है, कहते हैं कि कानू युअतून क़ब्ल अल फित्र बियौमिन औ यौमैन, ये भी बुखारी मुस्लिम की रवायत है कि लोग अल्लाह के रसूल के जमाने में लोग एक दिन या 2 दिन पहले भी निकाल दिया करते थे। इसी तरह से मुअत्ता के अंदर एक रवायत है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा 3 दिन पहले भी निकाल दिया करते थे। तो ये जायज वक्त हुआ कि आप ईद उल फित्र से 3 दिन पहले, यानी 27वें रोजे से आप ज़कातुल फित्र निकाल सकते हैं। उससे पहले अगर कोई निकाल देता है तो दुरुस्त नहीं है, ज्यादा पहले नहीं निकालना चाहिए। बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अभी से हमने निकाल दिए, यानी आखिरी अशरा शुरू होते ही बहुत सारे लोगों ने ज़कातुल फित्र निकाल दिए, ये दुरुस्त नहीं है। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबे किराम के नक्शे कदम पर चलना है, अपनी तरफ से दीन में कोई अमल नहीं करना है, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन का अमल मकबूल नहीं होगा। इसी तरह से ज़कातुल फित्र में क्या निकाला जाए, इसके ताल्लुक से अभी आपने सुना कि अल्लाह के वसल्लम ने फर्ज किया है कि आप खजूर निकालें, जौ निकालें। इसी तरह से एक दूसरे साहबे मुझसे खुजर जो बयान फरमाते हैं, कुन्ना नुख्रिजु ज़कातुल फित्र साअ मिन ताआमिन औ साअ मिन शईरिन औ साअ मिन तमर औ साअ मिन अक़िस औ साअ मिन ज़बीब, कि हम ज़कातुल फित्र निकाला करते थे एक सा खाना या एक सा जौ, खाने से मुराद गेहूं, एक सा गेहूं या एक सा जौ या एक सा खजूर या एक सा पनीर या एक सा मुनक्का यानी किशमिश, ये भी बुखारी मुस्लिम की रवायत है। तो सहाबे किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यही जो उनके खाने की ग़िज़ाएं हुआ करती थी आमतौर पर, उस जमाने में हमारे और आज के जमाने की तरह से दाल चावल लोग नहीं खाते थे। लोग खजूरों पर, अरब के अंदर खजूरों पर गुजारा होता था, मुनक्का खाया जाता था और जौ और गेहूं
کھائے جاتے تھے, اسی طرح سے پنیر کھائے جاتے تھے. تو جو ان کی غذا تھی اسی میں سے ہی وہ لوگ ایک سا ساری غذاؤں میں سے ایک ایک سا ہی نکالا کرتے تھے, کسی کی کچھ الگ مقدار نہیں ہے. اور ایک سا جو ان کے یہاں ناپنے کا پیمانہ تھا وہ ہمارے یہاں وزن کے پیمانے سے 2.5 کلو تقریباً بنتا ہے. تو 2.5 کلو اناج جو کچھ ہم کھاتے ہیں اسی میں سے نکالنا چاہیے, غذا ہی نکالنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو مقصد بتلایا ہے وہ بھی غذا سے ہی پوری ہوتی ہے. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کیا ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. یہ ابو داؤد کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرض کیا ہے روزے دار کے لیے لغو اور رفث سے, بےہودہ باتوں سے, بےہودہ کام سے, یعنی ان کے روزے میں جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کی وہ زکات الفطر کفارہ بن جائے, اس کی وجہ سے ان کے گناہ مٹا دیے جائیں, ان کی جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی صفائی ہو جائے. طہرۃ للصائم, ہمارے روزے جو گندے ہو گئے ہیں, جو میلے ہو گئے ہیں, جو خراب ہو گئے ہماری غلطیوں کی وجہ سے, جیسے ہمیں پابندیاں کرنی چاہیے ہم نہیں کر پائے ہیں, اس کی وجہ سے جو کمی آ گئی روزے کے ثواب میں وہ پورا ہو جائے. یہ ایک مقصد ہے. دوسرا مقصد ہے وہ طعمۃ للمساکین, مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے. انسان کی بہت ساری ضروریات ہیں لیکن سب سے بنیادی ضرورت آپ دیکھیں گے تو کھانا ہے. ایک انسان بغیر گھر کے زندہ رہ سکتا ہے, بغیر کپڑے کے زندہ رہ سکتا ہے, اور دوسری چیزیں ہیں حالانکہ بنیادی ضرورتیں ہیں, لیکن بغیر کھائے کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے غذا ہی نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آپ اگر چاہیں تو اپنی طرف سے اس میں پیسہ ملا کر کے دے سکتے ہیں, نقد ملا کر کے دے سکتے ہیں. مثلا آپ کے اوپر, آپ اپنے گھر میں 2 لوگ رہتے ہیں, 2.5 کلو کے حساب سے 2 آدمی کا 5 کلو اناج نکلتا ہے. آپ 5 کلو اناج نکالیں, اس کے ساتھ آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ عید کا دن ہے, آدمی کچھ خریدی کرنی ہوگی, کچھ اور چیز لینی ہوگی, تو آپ اس کے ساتھ 100, 200, 500 روپے بھی دے دیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے تو آپ دے دیں, لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کے لیے ضروری نہیں, مگر غذا نکالنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. کیونکہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہوگا, کیونکہ اللہ رب العالمین وہی قبول کرتا ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ غذا نکالنے کا حکم دیا ہے. صحابہ کرام نے جو نکالا ہے وہ غذا نکالا ہے, اور جو اللہ کے رسول نے مقصد بتلایا ہے وہ غذا سے پوری ہوتی ہے کہ مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے. جو لوگ آسانی کے لیے نقد نکالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے لوگ غذا خرید لیں گے, اس میں بڑی خرابیاں ہیں جو علماء نے بیان کی. اس میں بہت سارے علماء نے بڑی سختی کے ساتھ, اللہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ نقد نہیں دینا چاہیے, کیونکہ ایک تو اللہ کے رسول کی حدیث پر آپ کا عمل نہیں ہوگا, خطرہ ہے کہ آپ کا وہ صدقہ قبول نہ کیا جائے. دوسرا یہ کہ بہت سارے گھروں میں یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ آدمی غیر ذمہ دار ہے, گھر کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی فکر نہیں کرتا ہے, عورتیں بچے اس لیے پریشان رہتے ہیں. اگر نقد پائے گا تو ہو سکتا ہے وہ جا کے شراب پی لے, ہو سکتا ہے وہ جا کر کے جوا کھیل لے, یا اس طرح سے اس کو برباد کر دے, دوسری برائیوں میں ملوث ہو جائے, جا کر کے پیسہ پا کر کے جا کے پتہ چلے جا کے عید کے دن سنیما تھیٹر میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن جب آپ غذا اس کے گھر پہنچائیں گے تو غذا گھر میں پہنچے گا, بیوی بچوں کی اور سب کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جائیں گی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں اور غذا نکالیں. اسی طرح سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طعمۃ للمساکین یہ صرف مسکینوں کا حق ہے, یہ کسی اور کو آپ نہیں دے سکتے, مسجد مدرسے میں کہیں اور آپ نہیں دے سکتے, یہ آپ جہاں رہتے بستے ہیں آپ کے علاقے کے مسکینوں کا حق ہے. بہت سارے لوگ آدھے رمضان سے آخری عشرے میں آ کر کے فطرہ دو وصولی کرنے لگتے ہیں. نہیں, یہ آپ جہاں رہتے بستے ہیں پہلے آپ دیکھیں آپ کے قریب میں, آپ کے رشتے داروں میں کہیں کوئی مسکین ہے, مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو, یہ صرف مسکینوں کا حق ہے. جو زکات کے 8 مصارف ہیں ان 8 مصرف میں دینا ضروری نہیں, یہ صرف مسکینوں کا حق ہے, صرف مسکینوں کو دینا ہے. فقیر مسکین وہ آدمی, فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہے لیکن اتنا نہیں کہ ضرورت پوری ہو جائے, اس کی ضرورت سے کم ہے, اس کو مسکین کہا جاتا ہے. تو اس کو دینا ہے. بظاہر دیکھنے میں کھاتا پیتا نظر آتا ہے لیکن پوچھیں کیا گھر میں پریشانی ہے, سال بھر کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں یا تکلیف ہوتی ہے, تو اس کو دیں. اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کون نکالے گا جس کے پاس نصاب بھر
गल्ला है जो साहिब निसाब ज़कात अदा करने के लिए वो निकालेगा या सभी को निकालना है? ये हर उस इंसान को निकालना है जिसके पास उस दिन ईद के दिन खाने के अलावा ज़कात से निकालने की का गल्ला मौजूद है। अगर किसी के पास बिल्कुल नहीं है, उस दिन उसके पास खाने के लिए नहीं है, एक दिन की का गल्ला भी उसके घर में मौजूद नहीं है, तो वो ज़कातुल फितर नहीं निकालेगा। इसके लिए निसाब की कोई शर्त नहीं है। ये हर मुसलमान को निकालना जिसके पास निकालने भर का अनाज या पैसा घर में मौजूद है, वो जाए और उतना ज़कातुल फितर खरीदे और अदा कर दे। इसी तरह से अगर कोई, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब नमाज के लिए निकल पड़ते हैं तब जाकर के ढूंढते हैं और रास्ते में अदा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है, साहबी क्या कहते हैं कि वो अमरा बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूजिन नास इला सलाह। अल्लाह के रसूल ये हुक्म देते थे कि नमाज के लिए लोगों के निकलने से पहले अदा करो। नमाज के लिए, नमाज पढ़ने की बात नहीं हो रही, नमाज के लिए निकलने, घर से नमाज के लिए निकलने से पहले अदा करो। आप कपड़ा पहन कर तैयार होकर के और उसके बाद निकल करके जब जाते हैं नमाज की, तो रास्ते में ढूंढते हैं, तो रास्ते में जो भी मिला आप जल्दी से बोझ उतारना चाहते हैं। लेकिन जब आप निकलने से पहले अदा करेंगे तो बड़े इत्मीनान से ढूंढकर मुस्तहिक तक पहुंचाएंगे। इसलिए निकलने के वक्त नहीं बल्कि निकलने से पहले पहले आप अदा करें। और अगर निकलने के नमाज के बाद आपने अदा की तब तो ये ज़कातुल फितर के नाम से आपका कबूल ही नहीं किया जाएगा। ये एक आपका आम सदका होगा, उसका तवाब, उसका मकसद पूरा ही नहीं होगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फमन अद्दाहा क़ब्ल सलाति फहिय ज़कातुन मक़बूला, जिसने नमाज से पहले पहले इसे अदा कर दिया तो उसकी ज़कात मकबूल होगी। ज़कातुल फितर के नाम से उसका अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, उसका मकसद पूरा होगा। जो बताया गया है कि उसके रोजे में जो कमी आ गई वो गुनाह मिटा दिए जाएंगे। लेकिन वमन अद्दाहा बाद सलाह फहिय सदक़तुन मिन सदक़ात, अगर नमाज ईद के अदा करने के बाद कोई अदा करता है तो ये आम सदका होगा, लिहाजा इससे बचना चाहिए। इसी तरह से ये ज़कातुल फितर के ताल्लुक से चंद बातें थी। अब आइए देखें कि ईद सलातुल ईद के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और क्या हुक्म दिया है। ये रमजान के रोजा रखने की खुशी है और खुशी में एक मोमिन के लिए हुक्म यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करे। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास, जो लोगों के लिए हिदायत है, वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, और जो हक़ व बातिल के दरमियान फर्क करने वाली और हिदायत की निशानियां है उसके अंदर। फमन शहर मिनकुम शहरा फल्यसुम, जो रमजान का महीना पाए उसको चाहिए कि रोजा रखे। जो बीमार हो या सफर पर हो तो उसे चाहिए कि दूसरे दिनों में गिनती को पूरा करे। फिर आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता, तंगी नहीं चाहता है। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह ये चाहता है कि जो अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है, माह रमजान का मुबारक महीना अता फरमाया है, रोजा रखने की तौफीक दी है, क़याम की तौफीक दी है, तो उस पर तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह की तकबीर बयान करो। इसीलिए ईद का चांद देखने के बाद से लेकर नमाज की अदायगी तक तमाम छोटे बड़े, तमाम मर्द औरत, तमाम मुसलमानों को तकबीर पुकारते रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। या इसी तरह से 3 बार पहली बार कहें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात पुकारते रहना चाहिए। आगे क्या फरमाया, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। और मोमिन का तरीका यही है कि जब उसे कोई नेमत अल्लाह की तरफ से हासिल होती है, कोई खुशहाली मिलती है, तो वो शुक्र अदा करता है। ये कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने उसे रमजान का महीना अता फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे रोजे की तौफीक अता फरमाई, क़याम की तौफीक अता फरमाई, कुरान की तिलावत की तौफीक नसीब फरमाई, सदका और खैरात किया उसने, अल्लाह ताला उसे कबूल करे, उसके गुनाहों को माफ करे। तो ये कितनी बड़ी सआदत की बात। तो इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र अदा करना यही है कि जहां जुबान से अल्लाह की तकबीर और बड़ाई बयान करे, वहीं अल्लाह के सामने जाकर सजदा रहे। तो ये ईद की नमाज, ये बहुत बड़ा शुक्र है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सबको ईदगाह की तरफ लेकर चलो। जैसा कि उम्मे आतिया रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि उमिरना अन नुखरिजल अवातिक़ वल क़य्यिज़ फ़िल ईदैन यशहदन अल खैर व दावतल मुस्लिमीन, कि हमें ये हुक्म दिया गया। और बाद रिवायत के अंदर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम कुंवारी या लड़कियों को, हायजा औरतों को, सबको
ले करके जाएं ईदगाह की तरफ, यानी जो औरतें हालत हैज में नमाज नहीं पढ़ सकती उनको भी ईदगाह लेकर जाएं। फयशहदन अल खैर, वो इस खैर में, इस भलाई में वो शरीक रहें, वो हाजिर रहें। यानी ईदगाह की तरफ जाना, ईद की नमाज के लिए जाना, ये बहुत बड़ा खैर है, बहुत बड़ी भलाई है, जिससे किसी को महरूम नहीं रहना चाहिए। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई अपने औरतों को ईदगाह नहीं जाने देते हैं, ये गलत है। अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी निकालना चाहिए। यहाँ तक कि औरतों ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने से बाज़ औरतों के पास दुपट्टा नहीं होता है, यानी पर्दे के लिए जो हमारे जमाने में बुर्का पहना जाता है, उसके बाद बुर्का नहीं है, क्या करे? जबकि जानते अल्लाह के रसूल के जमाने में कितनी गुर्बत, उस वक्त सहाबे किराम की क्या हालत थी। कहती है कि किसी के पास चादर नहीं है ओढ़ने के लिए, पर्दे के लिए, तो कैसे निकलेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरी औरत के चादर में ओढ़ कर जाए, यानी किसी के पास है किसी के पास नहीं है तो एक में दो ओढ़ कर जाए चलेगा, किसी से उधार मांग कर लेकर जाए चलेगा, लेकिन सबको निकल कर जाना चाहिए और सबको वहां मुसलमानों के खैर में, भलाई में, मुसलमानों की दुआओं में, दावतल मुस्लिमीन, मुसलमानों की दुआओं में उसे शामिल होना चाहिए। ईदगाह में जाना, ये वहां पता चला कि वहां दुआएं भी करनी चाहिए। वतातज़िलुल हुय्यज़ अल मुसल्ला, और औरतें जो हैज वाली हैं, जो नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, वो मुसल्ले से, ईदगाह से थोड़ा हट कर बैठे, उनके लिए इंतजाम किया जाना चाहिए कि यहाँ ऐसी औरतें बैठेंगी जो नमाज नहीं पढ़ सकती, वहां वो बैठेंगी, तकबीरात पुकारेंगी, दुआएं मांगेंगी, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। इसी तरह से ईद की नमाज कैसे पढ़ते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला यौमुल ईद रकातैन लम युसल्ली क़ब्लहा वला बअदहा, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज, चाहे वो ईद उल अज़हा हो चाहे ईद उल फितर, दोनों की नमाज एक जैसे अदा की जाती है। ईद की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात अदा फरमाई, सिर्फ 2 रकात ईदगाह में नमाज अदा की जाती है और ये नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है। आप अल्लाह के वसल्लम के जमाने की को देखें, मस्जिद नबवी मौजूद है और मस्जिद नबवी की जो फजीलत है वो साहबा जानते हैं, सुन चुके हैं, लेकिन मस्जिद नबवी को छोड़ करके बाहर मैदान में आबादी से बाहर जाकर पढ़ते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ मस्जिदों को छोड़ करके बाहर मैदान में पढ़ने की कोशिश की जाती है। हाँ, अगर बारिश से कोई मजबूरी है तो मस्जिद के अंदर भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन मजबूरी नहीं है तो बाहर मैदान में ही पढ़ना चाहिए। तो बाहर मैदान में पढ़ते थे और वहां सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ते थे, न उससे पहले कोई पढ़ते थे, लम युसल्ली क़ब्लहा वला बअदहा, न उससे पहले कोई नमाज पढ़ते थे न उसके बाद कोई नमाज पढ़ते थे। ईदगाह पहुंचेंगे सिर्फ 2 रकात की नमाज पढ़ेंगे। और अल्लाह के वसल्लम ईद की नमाज जब पढ़ते थे तो उसमें कोई अजान और इकामत भी नहीं होती थी, जैसा कि जाबिर बिन सब्रा कहते हैं कि मैंने कई बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदैन की नमाज पढ़ी बगैर अजान और बगैर इकामत के। इसमें ना अजान है ना इकामत है, डायरेक्ट पढ़ी जाएगी, ये सही मुस्लिम की रवायत है। और इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नमाज पढ़ते थे और खुतबा बाद में देते थे, पहले नमाज पढ़ते थे और खुतबा बाद में देते थे। आप जुमा कितने देखते हैं, पहले खुतबा होता है, नमाज बाद में होती है, लेकिन ईद के अंदर पहले नमाज होगी, खुतबा बाद में होगा। इसी तरह से कैसे पढ़ते थे, ये नमाज थोड़ी सी अलग है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज पढ़ते थे। पहली रकात में क़िरात से पहले 7 बार तकबीर कहते थे और दूसरी रकात में 5 बार ये जायद तकबीरें कहते थे। इन दोनों रकातों में मिला करके 12 तकबीर जायद कहते थे और इसी के सब कायल हैं सिवाय इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। बाकी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुहद्दिसीन कहते हैं, जैसा कि तिरमिज़ी, इब्न माजा, इब्न खुज़ैमा और बैहक़ी, दारक़ुतनी वगैरह की रिवायत है। हजरत अमर बिन औफ मुज़नी कहते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्बरा फिल ईदैनी फिल ऊला 7 क़ब्ल अल क़िरात व फिल सानिया 5 क़ब्ल अल क़िरात। पहली रकात में क़िरात से पहले यानी सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 7 मरतबा, दूसरी रकात में क़िरात से पहले 5 मरतबा अल्लाह के रसूल ने जायद तकबीरें कही। इसी तरह से अल्लाह के रसूल क्या पढ़ते थे, सही मुस्लिम की रिवायत है कि नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सब बिकल आला पढ़ते थे और दूसरी रकात में हल अता का हदीसुल गाशिया पढ़ते थे। इसी तरह से अल्लाह के रसूल कभी पहली रकात में सूरह काफ और दूसरी रकात में इक़्तरबतिस साआ भी पढ़ते थे, जैसा कि ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है और ये अबू वाक़िद अलैहि रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ईद की नमाज पढ़ते थे, फिर उसके बाद खुतबा देते थे और उसके बाद उस खुतबे में अल्लाह के रसूल लोगों को नसीहत करते थे, सत्य पर उभारते थे। अगर वहीं से कोई वफ्द भेजना होता था तो अल्लाह के रसूल किसी वफ्द को भी वहीं से रवाना कर देते थे दावत के लिए, किसी को कोई पैगाम देने के लिए या जिहाद के लिए। अल्लाह के रसूल ईदगाह से ही सहाबा किराम को भेज दिया करते थे। इसी तरह से
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत है कि आप ईदगाह के लिए जब निकलते थे तो ईद उल फित्र के दिन कुछ खा करके निकलते थे और ईद उल अजहा में बगैर कुछ खाए निकलते थे। आपको अगर याद रखना है तो इस तरह से याद रखें कि ईद उल फित्र में इफ्तार करके निकलना है, ईद उल फित्र में इफ्तार करके निकलना है और ईद उल अजहा में बगैर इफ्तार के निकलना है। क्योंकि ये रोजा तोड़ने की ही ईद है, तो आप रोजा रख करके ईद पढ़ने नहीं जाएंगे, रोजा घर पे तोड़ेंगे और उसके बाद जाएंगे। यानी ईद के दिन खाना पीना ये आपके लिए जरूरी है। अगर आप रोजे रखेंगे तो आप गुनहगार होंगे। जैसा कि बुखारी की रिवायत है कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यग़दु यौमल फित्र हत्ता याकुल तमरात व याकुलहुन वित्रा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खजूर खाते थे ईद उल फित्र के लिए निकलने से पहले, वो ताक अदद में खाते थे, क्योंकि अल्लाह ताला को ताक अदद पसंद है। 1, 3, 5 ये ताक अदद कहलाता है, 2, 4, 6 ये जुफ्त अदद कहलाते हैं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल जाते थे। इब्ने उमर इब्ने साद कहते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजु इलल ईद माशियन व यरजिउ माशियन। ये इब्ने माजा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह के लिए पैदल जाते थे और वापस भी पैदल लौट कर आते थे। अगर किसी को कोई मजबूरी है, कोई उज्र है, नहीं चल सकता है, तो वो सवारी से जा सकता है, वरना मजबूरी नहीं है तो पैदल ही निकलना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि इज़ा खरज यौमुल ईद फी तरीक़िन रजअ फी तरीक़िन आखर। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाते थे तो जिस रास्ते से जाते थे वापस आते हुए रास्ता बदल लेते थे। ये तिरमिज़ी की रिवायत। हम कोशिश करें कि अपने घर से निकलकर ईदगाह तक जिस रास्ते से गए हैं, रास्ते में कहीं ना कहीं रास्ता चेंज कर लें। अगर हर जगह मुमकिन नहीं कि पूरा चेंज करके आए, तो कहीं अगर मौका मिले, एक गली से गए हैं तो दूसरे गली से आए। इस तरह से कोशिश करें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, उसे छूटने ना पाए। इसी तरह से ईदगाह के लिए जब निकलें तो गुस्ल करके और खुशबू लगा करके, मिसवाक करके और अच्छे कपड़े पहन कर जाएं। जो आपके कपड़ों में अच्छे कपड़े मैसर हो वो पहन कर जाएं। यानी पूरी तरह से औरतें खुशबू इस्तेमाल ना करेंगी और अच्छे कपड़े पहन कर जाएंगे, लेकिन खुशबू इस्तेमाल नहीं करेंगी, और मर्द खुशबू भी इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि एक सुर्ख धारीदार चादर पहना करते थे, यानी जिसमें अल्लाह के रसूल सबसे प्यारे लगते थे, सबसे खूबसूरत लगते थे। वैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे खूबसूरत बनाया था, लेकिन आप ईद के लिए खुसूसी तमाम किया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि अपने कपड़ों में से अच्छे कपड़े पहनकर ईदगाह जाएं, और जब ईद की नमाज अदा कर लें तो सहाबा किराम का दस्तूर ये था कि एक दूसरे से मिलते थे तो मुबारकबाद देते थे। हज़रत जुबैर बिन मुफैर कहते हैं कि काना असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तक़ौ यौमुल ईद यक़ूल बअज़ुहुम लिबअज़ तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका कह करके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते थे सहाबा किराम। हमें भी चाहिए कि हम सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलें। इसी तरह से सहाबा किराम और से भी मिलता है कि ईद के दिन जायज खेल कूद का एहतमाम भी करते थे, जैसे नेजाबाजी वगैरह का एहतमाम करते थे। उनके जमाने में जायज खेल थे, आज भी अपने जमाने में हम जायज खेल का एहतमाम कर सकते हैं। ईद के दिन खुशी मनाने में ये भी शामिल है, यानी खाने पीने और नमाज अदा करने तकबीरात के साथ साथ हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जो भी हमें खेल कूद से जो दिलचस्पी है और जायज है उसका भी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख्याल रखा है और उसके में रुख्सत दी है। लेकिन ना तो खाने पीने में, ना ही पहनने में, और ना ही किसी तरह की ज़ेब-ओ-ज़ीनत इख्तियार करने में, ना खेल कूद में हराम के इस्तेमाल की बिल्कुल इजाजत नहीं है कि एक मुसलमान खुशी के मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कर रहा है और हराम चीज का एहतमाम कर रहा है। यानी एक मुसलमान सोने की अंगूठी और सोने का चेन पहन करके जाए हराम है, रेशम का लिबास पहन करके जाए ये हराम है उसके लिए, दाढ़ी मुड़ा करके जाए ये हराम है, टखने से नीचे अपने कपड़े को घसीटते हुए जाए ये हराम है, कोई ऐसी चीज खा करके जो नशे वाली जाए ये हराम है। इसी तरह से ईद का दिन है, चलो अपने लड़के लड़कियां मर्द और खल्त मल्त होकर के एक दूसरे से हाथ मिलाए, गले मिले, ये हराम है। ना महरिम से गले मिलना, हाथ मिलाना, उसे मुबारकबाद देना, या जो आज के जमाने में बेहयाई का दौर चल पड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ये सब इससे बहुत दूर रहने की जरूरत। इसी तरह से बहुत सारे लोग ईद के दिन चलो नई पिक्चर रिलीज हुई है देखने जाएंगे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी शुक्र आपको अदा करना है कि अल्लाह ने एक महीना आपको तक़वा ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ फरमाई, और आप ईद की नमाज पढ़ते अपनी तक़वा को आग लगा देते हैं और जाकर के थिएटर में बैठ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगे रब्बुल आलमीन हम सबको सही मालूम अपने तक़वे पर कायम रखे, और जिस तरह से रब्बुल आलमीन हमें एक महीने तक़वा की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ फरमाई है, मरते दम तक हमें इस पर कायम रखे और अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनकर रहने की तौफ़ीक़ फरमाए। अल्लाह ताला कभी दुनिया से उठाए हाथ से ईमान पर उठाए,
जन्नत फिरदौस में हमारा ठिकाना बनाए, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वद'ूहु यस्ताजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।